Hello friends, welcome to Balkishar Premier Academy, one of the most premier institute for GATE, IES and PSU examinations. We are going to discuss about the p-type semiconductor. As we know that if we dope an intrinsic सेमीकंडक्टर, सपोज हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर मैं ग्रुप 3 एलिमेंट से डोप करूं, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी से डोप करूं, मतलब इसके अंदर अगर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम को ऐड करते हैं तो फाइनली जो हमें मिलता है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी होते हैं, दिस ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी बहुत सारे होते हैं जो यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज द बोरॉन, second one that is used aluminium, third one is the gallium, and the fourth one is the indium. So these are the trivalent impurity that are used to dope the intrinsic semiconductor to produce the p-type semiconductor. तो ये जो मैंने देखा, तो यह इस तरीके से हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जब प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, इसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए मेरे पास दो मॉडल है। फर्स्ट वन मेरा पास है एनर्जी बॉन्ड मॉडल। we have energy bond model, we know the model. So using the energy bond model we can describe the p-type semiconductor phenomena, and also we can also describe the internal phenomena of the p-type semiconductor using energy बैंड मॉडल से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हम लोग फॉलो करेंगे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वी नो नाउ फर्स्ट लेट अस concentrate on the trivalent impurity. Suppose if we take a boron atom, सपोज हमारे पास एक बोरॉन एटम है, तो बोरॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे मेरा कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन and this will be the third electron. That's why it is a trivalent atom. So outermost orbit में 3 electrons. Now हमको क्या करना है कि हमारे पास, now first we are describing using the energy bond model. So for that let us take a semiconductor, and for the case of semiconductor let us take a silicon semiconductor. So it is a silicon semiconductor bar. Now inside this we have to give the impurity. Suppose let us take, we are giving the borons, we are giving the boron impurity inside the silicon. So what will happen, the silicons जो atoms होंगे, जो silicons atoms होते हैं silicon के अंदर, that silicon atom will be replaced by these boron atoms. तो बोरोन एटम से अगर रिप्लेस हो जाएंगे तो सिलिकॉन की जगह पे मुझे बोरोन मिल जाएगा। अब लेट अस सी हाउ मच, if I say right now कि how many boron atoms are needed to dope silicon moderately डोप करने के लिए कितने अमाउंट और कितने नंबर्स ऑफ बोरॉन एटम्स मुझे चाहिए to dope the silicon moderately. So for that we need to know the silicon atomic concentration. So the silicon
atomic concentration is equals to, we know that 5 into 10 to the power 22 number of atoms per unit सेंटीमीटर क्यूब। तो पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में मेरा कितने सिलिकॉन एटम्स होते हैं? 5 into 10 to the power 22। नाउ फॉर मॉडरेट डोपिंग के लिए जो इम्प्यूरिटी रेशियो होता है, इम्प्यूरिटी रेशियो होंगे, दैट इम्प्यूरिटी रेशियो होता है 1:10 to the power 8। लेट अस एज्यूम 10 to the power 8। 10 to the power 8 भी होता है, 10 to the power 6 भी होते हैं। ओके, 10 to the power 8 भी होता है, 10 to the power 6 भी होते हैं। सो लेट अस टेक इट एज 10 to the power 8। नाउ तो मॉडरेट डोपिंग के लिए मुझे पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना बोरोन एटम चाहिए? सो नंबर ऑफ बोरोन एटम्स, नंबर ऑफ बोरोन एटम्स needed per unit volume, needed per unit volume, that is centimeter cube, cc, cubic centimeter. So it will be 5 into 10 to the power 22 into the impurity ratio, means 1 by 10 to the power 8. So it will be 5 into 10 to the power 14 number of boron atoms per unit volume, मतलब cc। तो इतने नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स मुझे चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम पे फॉर डोपिंग द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मॉडरेटली। सर आफ्टर डोपिंग क्या होगा? आफ्टर डोपिंग क्या होगा हम लोगों को देखने के लिए दो तरीके हैं। एक है एनर्जी बॉन्ड मॉडल, अनदर वन इज एनर्जी बैंड मॉडल। So let us see what will happen inside the semiconductor after the doping. So for that, if we describe first with the energy बॉन्ड मॉडल, तो हम लोग अगर एनर्जी बॉन्ड मॉडल की बात बोलते हैं तो क्या होगा? सो दिस इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन क्रिस्टल 2D एटम रिप्रेजेंटेशन है। सो वी कैन से इट इज अ 2D एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द 2D एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिलिकॉन। जो ब्लैक कलर के बॉल सबको दिख रहे हैं, these are nothing but the silicon atom। सिलिकॉन एटम के पास मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। और ये जो येलो कलर का लाइन है, these are the covalent bonds। और कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। we know that। so this is the sharing of electrons and this is the covalent bond। ये मेरा कोवेलेंट बॉन्ड है। सो सिलिकॉन मुझे दिख गया, कोवेलेंट बॉन्ड मुझे दिखा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डोपिंग डाले। सो लेट अस पुट डोपिंग, लेट अस पुट डोपिंग। मैंने डोपेंट्स डाले। कौन सा डोपेंट डालेंगे? बोरॉन डोपेंट्स डालेंगे, ग्रुप 3 का, ट्राइवेलेंट एटम का। लेट अस एज्यूम वी हैव डोप्ड 4 एटम्स ऑफ बोरॉन। तो मैं अगर 4 एटम्स ऑफ बोरॉन को यहाँ पे डालूंगा, तो जैसे ही बोरॉन एटम्स, जैसे ही ये बोरॉन एटम्स अंदर की तरफ जाएंगे, तो ये जो सिलिकॉन एटम्स मुझे दिख रहा है, ये सिलिकॉन एटम्स को, कोई भी 4 सिलिकॉन एटम्स को, सिंस आई एम गिविंग 4 एटम्स ऑफ बोरॉन, so these 4 atoms of boron will replace any 4 of the silicon atom। so let us assume that the silicon atom, जो सिलिकॉन एटम अभी रिप्लेस हुआ है,
So let us assume that this silicon atom has been replaced by the boron atoms. Another silicon atom which has been replaced, this is the silicon atom. I am assuming this. So let us also assume that this silicon atom is replaced by the boron atoms, and also this silicon atom is replaced by the boron atoms. So we have seen right now that these are the boron atoms. ये मेरा बोरोन एटम्स जो मैंने डोप किया था रेड कलर का, ये बोरोन एटम अभी सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देंगे तब as we know that the silicon will have 4 electrons, that's why there are covalent bondings. Now ये जो बोरोन एटम्स है ये तो ट्राइवेलेंट है, ये अगर ट्राइवेलेंट होगा इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डालेंगे। सो these cross signs are the electrons. So these 3 electrons are in the covalent bonds, but the boron atoms has only 3 electrons, and there is also a covalent bond here. So यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए था मगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था मगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है और एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था मगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, दिस वैकेंसी, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, दिस वैकेंसी इज नथिंग बट द होल्स। ये अभी होल्स क्रिएट हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। अब देखो कि हर एक बोरॉन एटम्स के लिए एक होल्स आया मगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ है। दैट मीन्स एट T इक्वल्स टू 0 पे, T इक्वल्स टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा? T इक्वल्स टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे एट क्या क्या होंगे? देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट नहीं हुआ है। देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड एंड देयर विल बी नो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, कोई भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट विल बी एन इंसुलेटर। सो मैं लिख सकता हूं कि एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, इस 0 केल्विन टेम्परेचर पे देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एंड देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, कोई भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी नहीं हो रहा है बिकॉज कोई थर्मल एनर्जी नहीं है। दैट्स व्हाई एट T equals to 0 Kelvin temperature, the p-type semiconductor will behave as an insulator. ये insulator की तरह behave करेंगे। Now let us increase the temperature. If I increase the temperature and if we make the temperature 300 Kelvin, रूम टेम्परेचर पे अगर चले जाते हैं तो क्या होगा? So if I increase the temperature, so there will be some thermal energy. So thermal energy अगर होता है, so there will be some thermal energy. So thermal energy will come from the outside, from outside. So outside से मेरा thermal energy आएगा। जैसे ही outside से मेरा thermal energy आएंगे, so the bound electrons can move through these holes which require very small amount of energy. Now आप देख सकते हैं कि ये जो सिलिकॉन है इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरीके का। नाउ जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 300 केल्विन पे लेकर गया, कुछ थर्मल एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड आ गया। इस थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अभी ये होल के थ्रू मूव करना चालू करेंगे। मतलब
ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे और होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएंगे। सो द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग। सो मैं बोल सकता हूँ ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी द बाउंड इलेक्ट्रॉन can move through the holes, can move through the holes के थ्रू ये मूव करना चालू करेंगे which required very small amount of energy। बहुत ही छोटा एनर्जी चाहिए बाउंड इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए थ्रू द होल्स। कितने अमाउंट? सिलिकॉन के लिए it requires nearly 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और जर्मेनियम के लिए it requires 0.05 electron volt energy। So we can see the bound electrons has been started moving and we know that the bound electrons is nothing but ये जो bound electrons है ये bound electrons का movement ही आपका holes का movement होता है। ये आपका holes का movement होता है। So in another words we can say that holes will start moving through the covalent bond। covalent bond के through से ये move करना चालू करेंगे। So the covalent bonds will be यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर से ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होल के अंदर मूव करेंगे। सो अल्टीमेटली द होल विल मूव्स। अल्टीमेटली द होल विल मूव्स क्योंकि देखिए यहाँ से बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और होल कहाँ पे प्रोड्यूस हुए? यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया और होल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। नाउ ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो होल इधर पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे मेरा बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो इन दिस वे the hole will start moving through the covalent bonds as the bound electrons will move through the holes। ये तो था पहला फिनोमेना हुआ। नाउ दूसरा फिनोमेना क्या हो जाएंगे? दूसरा फिनोमेना ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी सम कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है सम कोवेलेंट bonds will be broken। bonds will be broken। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अगर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो equal amount of electrons, equal number of electrons and holes produce होगा and holes will be produced। कुछ equal amount of holes and electron produce हो जाएंगे। तो अभी मैं देख रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं देखूंगा कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात बोलूं सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? सो इफ आई से द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज n और p टाइप सेमीकंडक्टर है सो np। सो np विल बी ड्यू टू द np जो होंगे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ड्यू टू ओनली द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा वही इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन देंगे और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स की अगर मैं बात बोलूं तो Pp दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग से भी आएंगे कुछ होल्स और कुछ होल्स कहां से आएंगे? ये जो इम्प्यूरिटी एटम्स हैं ये इम्प्यूरिटी एटम से मुझे एक होल मिलेंगे। हर एक इम्प्यूरिटी एटम से मुझे एक होल्स मिलेंगे। सो यहाँ पे मैंने देखा कि जो होल कॉन्सेंट्रेशन और होल नंबर है ये ज्यादा होंगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग से मुझे अगर सपोज मान लीजिए 10 कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 10 होल्स भी मिलेगा। मगर इम्प्यूरिटी एटम्स मैंने 4 डाला था सो टोटल 4 होल्स भी मिलेंगे। सो इम्प्यूरिटी एटम से मुझे सिर्फ होल्स ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं मिलेंगे। सो मेरे पास अभी हो गया 14 नंबर ऑफ होल्स और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10। सो वी कैन से दैट the electron concentration in the p type will be very much less than the whole concentration in the p type।
इसीलिए इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर, ये माइनॉरिटी कैरियर है, और ये जो होल्स है ये होता है मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जैसे ही ये जो, और ये था माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बारे में। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट the impurity atoms. What will happen to the impurity atoms if these holes, suppose if I am talking about this impurity atom, if I talk about this impurity atom, ये वाले impurity atom के बाद में अगर बोलूं तो क्या होगा। तो मैंने देखा जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो the bound electrons start moving through the holes. So let us assume that यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आते हैं, और ये जो होल्स हैं, तो होल्स कहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, होल्स ये वाले पोजीशन पे क्रिएट होगा, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। सो नाउ द होल्स विल बी क्रिएटेड एट दिस पोजीशन, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले आएंगे। सो पहले जब इलेक्ट्रॉन नहीं था इसके पास तो ये न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, इसीलिए ये जो इम्प्यूरिटी बोरोन एटम्स है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे जब बाउंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा वैकेंट स्पेस पे। सिमिलरली ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, सिमिलरली ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ जो ग्रुप 3 इम्प्यूरिटी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। सो वी कैन से दैट the group 3, that is the trivalent atoms, will become negatively charged, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिवली एक्सेप्टर एटम। सो दे आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड acceptor ions, acceptor ions, इसी को बोलते हैं acceptor ions। So acceptor ions are negatively charged. Now if we want to see this whole phenomena using the energy band model, so energy band model से मैं अगर देखना चाहता हूँ, so what will be that, so what will be the explanation using the energy band model। so energy band model से मैं इसको explanation करने जा रहा हूँ। सो एनर्जी बैंड मॉडल, सो एनर्जी बैंड मॉडल की मॉडल से मुझे मालूम है कि मेरे पास एक कंडक्शन बैंड होंगे, एनर्जी बैंड। सो दिस इज द कंडक्शन एनर्जी बैंड, जहां पे सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल आपका इसी होगा। सिमिलरली देयर विल बी अ वैलेंस बैंड जिसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल ईवी होंगे इन दिस वे, और जो बॉटम एनर्जी लेवल होगा दैट इज, लेट अस डिनोट इज ईवी, और टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड को मैंने बोला ई टॉप। ओके, सो वी कैन सी दिस इज द कंडक्शन बैंड, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। सो दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड, और इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको अगर पूछते हैं तो आप बोलेंगे सर इसको बोलेंगे energy gap। So this is the energy band gap and this is the conduction band, this is the valence band। Now as we know that, let us first discuss about T equals to 0 Kelvin।
So if we talk about 0 Kelvin, so at T equals to 0 Kelvin, we know all the electrons will be in the valence band. So there are so many electrons inside the valence band. इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं है, इसीलिए T इक्वल्स टू 0 पे ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। और T इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही मैंने कुछ डोपिंग डालेंगे, इफ आई डोप बोरॉन एटम्स, तो an imaginary discrete energy level is created. So imaginary discrete energy level कहाँ पे क्रिएट होंगे? near the EV. तो EV के पास कुछ इमेजिनरी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। सो ये क्या है? ये इज द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एंड दिस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये जो गैप है कितने ऊपर रहेगा? दिस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल विल बी नियर अबाउट, सिलिकॉन के लिए ये जो EA माइनस EV होंगे, that will be nearly 0.01 electron volt for silicon and germanium के लिए 0.05 electron volt for germanium. That means it is silicon के मैं बात बोलूंगा तो 0.01 electron volt. अब T equals to 0 केल्विन टेम्परेचर पे मैं अगर डोपिंग डालता हूँ, कितने डोपिंग डाले? सपोज 4 बोरोन एटम्स, मैंने 4 बोरोन एटम डाले सपोज। तो जो 4 बोरोन एटम्स होंगे, दैट 4 बोरोन एटम्स से जो होल्स आएगा, दैट होल्स विल बी reside at the acceptor energy level. So these are the holes or the boron atoms that are residing at the acceptor level. यहाँ पे होल्स हैं because मुझे मालूम है कि बोरोन एटम के पास एक होल्स होंगे, so it will create a hole in the covalent bond. So ये जो होल्स हैं यहाँ पे हैं. So now if I increase the temperature, मैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, let us assume we have increased the temperature T equals to 300 K. जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अब होल के थ्रू मूव करेंगे। सो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के अंदर, ये वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons will jump into the holes. These electrons will jump into the holes. These electron will jump into the hole. These electron will jump into the hole. That's why यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ जाएंगे और नीचे क्या क्रिएट होगा? नीचे आपका होल क्रिएट हो जाएंगे, ग्रीन कलर आपका होल्स है। सो हर इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपका होल क्रिएट हो गया वैलेंस बैंड के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब और क्या होंगे? कुछ कोवैलेंट बॉन्ड भी टूटेगा। सो यहाँ से दो फेनोमेना होता है। पहला जो फेनोमेना है कि the bound electrons will jump into the holes of the donor atoms. So donor atoms के holes में jump किए और bound electrons के place में holes create हो गया। So these are the holes. ये मेरा holes create हुआ। अब दूसरा फेनोमेना क्या होंगे? कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। सो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सीधा कंडक्शन बैंड के अंदर जंप करेंगे। इस तरीके से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट के सीधा आपका कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाएगा। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू द कोवैलेंट बॉन्ड कंडक्शन बैंड। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन,
और नीचे क्या क्रिएट होगा, नीचे आपका होल्स क्रिएट हो जाएंगे, इस तरीके का होल्स क्रिएट होगा। इफ आई से यहाँ पे आपका होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी द होल्स हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग इनसाइड द वैलेंस बैंड। यहाँ पे होल्स क्रिएट हुआ बिकॉज यहाँ का इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चला गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चला गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बॉन्ड पे गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कोवेलेंट। तो यहाँ पे मेरा 4 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे होल्स प्रोड्यूस हुए और यहाँ पे होल्स प्रोड्यूस हुए बिकॉज यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे आया है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे, इस तरीके से। So now if I want to find the total number of holes in the, यहाँ पे मैं अगर देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ होल्स कितना है वैलेंस बैंड पे, so total number of holes, the total number of holes क्या है, देखिए यहाँ से 4 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग से 4 और ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वहां पे जाने के लिए 4, so we will get 4 plus 4 that is 8। बट यहाँ पे कंडक्शन बैंड पे टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर है व्हाट इज दैट इज ओनली ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग दैट्स व्हाई 4। so the total whole number is greater than the total electron number, we can say this। so if I write down all this thing, the that will like this कि at t equals to 0 केल्विन पे, t equals to 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड जो है, conduction band will be empty। First thing, conduction band will be empty and the valence band will contain valence electrons। so valence जो electrons होंगे वो conduction band पे रहेगा, valence electron। so valence band will contain the valence electron of the impurity atom का valence electron valence band पे रहेंगे and also the bound electrons of silicon atom। तो सिलिकॉन एटम का जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो भी वैलेंस बैंड पे रह जाएगा और आपका इम्प्यूरिटी एटम्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका वैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। नाउ जैसे ही मैंने टेम्परेचर T इक्वल्स टू 300 K कर दिया, तो T इक्वल्स टू 300 K पे क्या हो गया कि T इक्वल्स टू 300 K पे दो फेनोमेना ऑकर होंगे। पहला वाला फेनोमेना सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन from the valence band from the valence band will come to the acceptor energy level EA पे आ जाएंगे, acceptor energy level पे आ जाएंगे। that's why holes will be created in the place of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो प्रीवियस प्लेस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो प्रीवियस प्लेस है वहां पे आपको होल्स क्रिएट हो जाएंगे इनसाइड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर होल्स क्रिएट होंगे, ये पहला वाला फिनोमेना होगा। और दूसरा वाला फिनोमेना क्या होंगे, सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन will move
from the valence band to the conduction band, covalent bond breaking की वजह से. So equal amount of free electrons, so equal amount of free electrons will be produced inside conduction band, and equal number of holes will be produced inside valence band. So these are the two phenomena that will happen. That's why we can say that from the previous slide we can say that this is the second phenomena where the electrons, valence electrons are moving into the acceptor energy level. और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा. और एक फेनोमेना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन सीधा कोवेलेंट कंडक्शन बैंड पे जाएंगे, वैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड पे, इस तरीके से. So that's why we can say that the total whole concentration, ये जो total whole concentration होंगे, that is P in the p-type semiconductor will be very much greater than the electron concentration inside the p-type semiconductor. That's why this is the majority carrier. ये मेरा majority carriers होंगे और ये मेरा minority carriers होगा. So what will be the condition for the p-type semiconductor? मैं अगर condition के बाद बोलूं, suppose I want to make a p-type semiconductor. So what will be the condition that we need to follow? The first condition that we need to follow is that the whole concentration of the p-type material, that is pp, should be greater than the Ni, and the electron concentration in the p-type material should be less than Ni. So this is the concentration condition of the p-type material. So in p-type semiconductor the current will be flowing due to the holes only. आपका holes के लिए flow करेंगे, ये आपका holes के लिए flow करेगा सिर्फ. So what will be the charge or the electrical neutrality, law of electrical neutrality? So let us see the electrical neutrality. So laws, if I write laws for electrical neutrality, so electrical neutrality का condition क्या होंगे? So according to the neutrality condition, we know the total amount of positive charge will be equals to total amount of negative charge. So what will be the total amount of positive charge here? So total amount of positive charge यहाँ पे जो होंगे वो होगा holes, that is PP, and the total amount of negative charge क्या है? कुछ electrons आएंगे NP plus कुछ acceptor negative ions आएंगे. So let us assume the acceptor concentration as Na. What is this? Na is the acceptor atom concentration. So from this we can say that Pp will be equals to Np plus Na. So another thing that we know that the acceptor concentration Na is very much greater than the Np. Np मतलब इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन से एक्सेप्टर एटम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए
हम लोग लिख सकते हैं कि होल कॉन्सेंट्रेशन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी नियरली इक्वल्स टू एन ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। So Na is the acceptor concentration. On how to find this Na? Na को कैसे निकाल सकते हैं? Na can be found like this. So Na will be equals to the total atomic concentration of the material, atomic concentration of semiconductor material जिसके अंदर डोप करना है, into the impurity ratio. Impurity ratio को मल्टीप्लाई कर देना है तो मुझे मिल जाएंगे Na. So how to find the conductivity? So मैं अगर conductivity के बाद बोलता हूँ conductivity of the p-type semiconductor. So the conductivity can be found as sigma p, and in sigma p we know that it will be n q mu n plus p q mu p, and we know that the electron concentration, we also know that the electron concentration in a p-type semiconductor is very much less than the whole concentration in the p-type semiconductor. That's why we can neglect this term. ये वाले term को मैं neglect कर सकता हूँ. So मैं लिख सकता हूँ sigma p is nearly equals to p into q into mobility of the holes. Again we know that pp is equals to nearly equals to na. तो इसी को अगर यूज करेंगे तो मैं लिखूंगा सिग्मा p is equals to na into q into mu p. So this is the relation of the conductivity of the semiconductor for the p-type material. So इसी से हम लोग resistivity भी निकाल सकते हैं. So resistivity को मैं लिख सकता हूँ resistivity भी हम लोग निकाल सकते हैं. So the resistivity value can be written as rho for the p-type material will be equals to sigma for the p-type material, that is equals to 1 by Na, that is the acceptor concentration, into Q into mu P. So in this way we can find the conductivity resistivity. So conductivity का जो unit होगा that will be mho per centimeter. So it will be mho per centimeter. And the resistivity का जो unit होंगे ohm centimeter. यहाँ पे भी ohm centimeter. So in this way we can explain the p-type semiconductor using both the energy bond model and the energy band model. In the end, do not forget to like and subscribe our channel to get more videos. Thank you.